तो मैं सुनील शुक्ला साहब का बहुत स्वागत करूंगा और सुनील शुक्ला साहब के स्वागत के साथ वो जो बाइट अधूरी रह गई थी, कुछ तकनीकी की दिक्कत थी, मैं सुना देता हूँ पूरी वो बाइट है जो उसकी पीड़ा थी, तो सुनिएगा। मैं फिर करता हूँ डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब से सवाल, राकेश जी, और फिर सुनील शुक्ला जी के पास जाऊंगा जो आखिरी में। सुनिएगा ये। Citizen residing in UK for about 14 years. And I was traveling on my holiday from London Gatwick to Japan via a transit in Shanghai. And basically, I went past the e-gates, happily queuing up for the security gates to transfer onto my next flight onto Osaka in Japan. And one of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue, basically said, look, India, took my name and something and took me out. So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just basically asked me to follow her. Took me close to the e-gates where there is the immigration, the manual counters for the immigration. And then she went on to say, Arunachal, not India, China, your visa not acceptable, your basically passport is invalid. Very confusing moment, obviously, because never heard of that before. We obviously are a proud Indian citizens, all residents of Arunachal Pradesh. And basically, she wouldn't give me an explanation. She wouldn't let me go back into the queue, said you cannot board the plane. Then other officials came. So actually, I probably interacted with around 10 other immigration officers. So another lady came, took me to another part of the airport. And in fact, when I tried to question them and ask them what was the issue, they said, Arunachal is not part of India, very clearly. And they said, you should apply, and started mocking and laughing and saying things like, you should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian. Some mockery around there. Then basically they took me to the transfer desk of China Eastern, which is next to an immigration desk. And they would just keep basically sending me from one desk to the other. So if I ask the Chinese airline, they tell me to go to the immigration tells me to go to them. And they basically didn't give me a straight answer. I said, where is the law? What rights have you got to hold me back here? So ultimately it took about 18 hours for me to get out of Shanghai. What is shocking to me is I have in fact transited through Shanghai in the past, a year ago, with no issues at all. In fact, the first time that I ever transited through China, I spoke to the Chinese embassy in London, and they said, with a short layover of about 3 to 6 hours, you don't need a visa. आपने सुना ये डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब, ये पूरा मसला है, लंबे वक्त से चल रहा है, 3-4 दिन से हम लगातार इस पे बातें हो रही, चल रहा है सारा का सारा। और उसमें जो मान्य नियम है, मान्य जो एक अंतरराष्ट्रीय जो वो है, उसके तहत उसको भी कहीं ओवरलुक किया जा रहा है। और फिर ये सारा कुछ कहना, ये और फिर हमारे यहाँ से रिएक्शन, और हमारी जो विदेश नीति, कूटनीति, और हम बड़े बड़े बातें पहले करते हैं, हम एक्सपोज तो पहले से हैं, लेकिन ये और इस तरीके से निकल कर आना, और विश्व गुरु दावे, क्या कहेंगे सब पर आप, डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा? सर, अगर बेशर्मी से दावे करने में कोई रोक नहीं है और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो फिर आप दावे कर ही रहिए। और दूसरी बात यह है कि ये तो सरकार ही दावों की है। वादे पूरे ना हो मगर दावे होते रहेंगे। देखिए, ये जो कूटनीति और विदेश नीति का सवाल है, इसकी तो धज्जियां इन लोगों ने ऐसी उड़ाई हैं भारत की कि आज भारत जो है, हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या दशा हुई थी हमारी। वो हिंदुस्तान, वो भारत जो नॉन अलाइन मूवमेंट के वक्त या उसके बाद भी इतना स्ट्रांग रहा कि बाइपोलर वर्ल्ड के भीतर उसकी एक हैसियत हमेशा बनी रही। आज की तारीख में हम अपने लिए समर्थन नहीं जुटा पा रहे। दूसरी बात, अरुणाचल, लद्दाख और बाकी इलाकों की क्या हुआ, ये घटना घटने के बाद विदेश मंत्रालय ने एक रूटीन प्रोटेस्ट जैसा लेटर एक जारी कर दिया। हमारे विदेश मंत्री का कोई अभी तक जवाब नहीं आया। ये वो विदेश मंत्री हैं जो उसी चाइना में एम्बेसडर रहे हैं देश के। हमारे वो प्रधानमंत्री जी जो जिनपिंग के साथ कितने झूले उन्होंने, कितनी चाय पी, कहां कहां घूमे, कहां कहां घुमाया।
उनके जुबान से कुछ नहीं निकला। वो चले आए अयोध्या में झंडा फहराने, भगवा झंडा फहराने। ये जो छद्म राष्ट्रवाद है, मैं कहता हूं कि इनका जो राष्ट्रवाद का नारा है ना, इसकी कुल सीमा भारत का पश्चिमी बॉर्डर है। अब थोड़ा सा पूरब की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तर जाने में इनकी हड्डियां कांप जाती हैं। ये सारी बातें कर लेंगे तो फिर नेहरू जी तक चले जाएंगे, मगर उसके बाद जैसा कि शुक्ला जी सर ने बताया कि इंदिरा गांधी के वक्त में क्या हुआ था, और राजीव गांधी ने अरुणाचल नाम रख के जिस तरह से एक मैसेज दिया था, पूरी दुनिया को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, उसके बाद मगर सवाल ये है कि धंधा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शपथ ग्रहण के बाद ही कहा था कि मैं गुजराती हूं, मेरे खून में धंधा है। तो धंधा जब आता है तो बहुत ज्यादा अगर संघी राष्ट्रवादी ताव खाते हैं तो चाइनीज झालरों पर का बहिष्कार करने का एक घोषणा कर देते हैं सोशल मीडिया पे जी। अपने घर पे, वो भी लगाते हैं, मगर उसके बाद उसके आगे इनकी ना हिम्मत है ना औकात है। भाई आप जब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज इस लाइन पर किए रहेंगे तो आप देश के बारे में क्यों बात कर रहे हो यार? फिर तुम अपने बिजनेस के बारे में बात करो ना। देश व्यवसाय से बहुत बड़ा है। हमने देखा किस तरह से, आप चीन को ही देख लीजिए, अमेरिका के साथ जिस तरह से वो डील कर रहा है, और आप जिस तरह की स्थिति में पड़े हुए, आप पूरी दुनिया में भारतीय पासपोर्ट की क्या दशा है इस वक्त, मगर नहीं साहब, राष्ट्रवादी हम ही हैं। तो अब इस मुगालते का, इस झूठ का, इस दंभ का जवाब क्या देना? मगर इतना तो तय है कि ये जो कहते हैं ना कि हम अतीत को लाएंगे, तो अतीत का गौरव तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन देश को खंडहर बना के जरूर छोड़ देंगे, चाहे वो विदेश नीति हो और या फिर हमारी भारतीय समाज। आज संविधान दिवस के अवसर पे आपने क्या किया? 2 दिन पहले आपके संविधान प्रदत्त ताकत, मैं उसके अगले चरण में आ रहा हूं, मैं अगले चरण में कनेक्ट है इसलिए मैं कर रहा हूं। 2 दिन पहले हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त की हुई ताकत से बना हुआ पासपोर्ट अपमानित हुआ है। यस सर। मैं राकेश सर, ये जो बात है, एक अकेला सब पर भारी, 56 इंच की छाती और क्या क्या है, और अब हम हर स्तर पर है और आपके बोल नहीं फूटते। जो बात मुख्य, हम देख रहे थे जो अभी धर्मध्वज फहरा रहे थे, तब क्या क्या बातें हो रही थी, क्या क्या नहीं हुआ, कि हम 198 ईयर पुराना जो गुलामी और तमाम, और हम कहाँ खड़े कहाँ हैं आज। और आप ये जो चीजें होती हैं, आप जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए वो तक ना हो, क्या कहेंगे आप राकेश सर? धन्यवाद संजीव जी। देखिए, ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन इस पर जिस ढंग से हमारी सरकार ने मौन साध रखा है उससे बड़ी तकलीफ होती है। ये वो सरकार है, इस सरकार के रक्षा मंत्री सिंध वापस लेने की बात करते हैं, लेकिन अपना अरुणाचल नहीं बचा पा रहे हैं। इस अरुणाचल को चीन कुछ और कहता है, उसने अलग नाम रखा है, जॉन गांग जाने ऐसा कुछ नाम है उसका, और ये कहते हैं ये अरुणाचल हमारा है। वो कहते हैं कि ये अरुणाचल हमारा पूर्वी तिब्बत है, लेकिन ये कहते हैं नहीं, अरुणाचल हमारा है। और अरुणाचल का जो रहने वाला है भारतीय नागरिक है, जो उस पासपोर्ट पर जिस महिला का आपने बाइट दिखाया, इनका नाम प्रेमा नाम है, ये 58 देश उसी पासपोर्ट में घूम चुकी हैं, लेकिन चीन में जाती हैं तो इनके साथ ये कहा जाता है कि नहीं भाई, तुम तो चीनी नागरिक हो, तुम्हारे पास ये हिंदुस्तानी पासपोर्ट तो गलत तरीके से आ गया, नया ले लीजिए। और इसके बाद थोड़ा बहुत, जैसा अभी कहा सिन्हा साहब ने, अब विरोध होता है कूटनीतिक स्तर पर। जो वहाँ हमारा आदमी है उसने कुछ कहा, बड़ी मुश्किल से 18 घंटे बाद मामला सॉर्ट आउट होता है, लेकिन विरोध नहीं होता। उनका प्रवक्ता, चीन का प्रवक्ता, वो अभी भी यही कह रहा है कि नहीं, अरुणाचल तो हमारा ही है, आप गलत तरीके से उसको ये व्याख्या कर रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा चीन ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नक्शे बनाए और उसमें अरुणाचल को अपना बताया। अभी शुक्ला जी ने बात की थी कांग्रेस की सरकार की, मुझे भी याद आता है कि राजीव गांधी के समय में और उससे पहले भी
जब अरुणाचल भारत का हिस्सा हो गया तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करने, डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने जो कर सकती थी किया। लेकिन आज की हमारी सरकार 10 साल से पूर्वोत्तर के सारे राज्यों में, अरुणाचल को भी उसमें जोड़ लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं कर पाई है। एक रेल चलाई भी है, वो रेल ऐसी है कि आप उसमें रास्ते में कहीं नहीं उतर सकते, दिल्ली से बैठेंगे तो सीधे जहां आपको भेजना वहीं तक जा पाएंगे। तो ऐसी जब हमारी विदेश नीति है जो हर कदम पर पिट रही है और खासतौर पर चीन के सामने पिट रही है, और हम चुपचाप बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि हम चीन से $750 बिलियन का आयात करते हैं, उनको देते नहीं है, उनसे लेते हैं। हमें डर है कि अगर ये जो बंद हो जाएगा तो इससे जो थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स मिलता है वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो चीन का नेतृत्व घोषित रूप से विस्तारवादी नेतृत्व है। हम कोशिश कर रहे हैं विस्तारवादी बनने की, सिंध को लाना चाहते हैं, लेकिन हम अपना अरुणाचल नहीं बचा पा रहे हैं। और तिब्बत, जिसकी बहुत बात चर्चा होती है, एक तिब्बत तो हमारे देश में बसे हुआ है धर्मशाला में। हम उस तिब्बत को लेकर के पिछले 60 साल से क्या कर पाए हैं चीन के खिलाफ, किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर कोई बता दे। और ये जो घटना हुई है, ये निश्चित तौर पर अभी जैसी बात हुई कि ये संविधान दिवस पर इसका जिक्र इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये विधान का मतलब है जो हमारी संप्रभुता का विधान है, उसके तहत जारी है प्रेस पारपत्र है। और इस पारपत्र का अपमान जाके वहां से हो जिस देश से हम धंधा करते हैं $750 बिलियन का, वो अपमान हमारा कर दो। अरे भाई, दरवाजा बंद कर दो। आपने तो अभी फ्लाइट शुरू कर दी डायरेक्ट 4 साल बाद। अब वहां हिंदुस्तान का आदमी जाएगा तो गालियां खाएगा। मैं 10 साल पहले चीन गया था, मैंने देखा था कि वहां की जनता, वहां का प्रशासन, वहां के इमिग्रेशन अधिकारी भारत के लोगों से सौजन्यता से बात ही नहीं करते। उनके मन में अभी भी लगता है कि दुश्मन है। ये हिंदी चीनी भाई भाई वाला मामला सब झूठा है। तो अगर नेहरू जी के समय में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से हमें आघात पहुंचा, हमारे साथ छल हुआ, तो अब आप क्यों कर रहे हो भाई हिंदी चीनी भाई भाई? आप नेहरू जी को फॉलो क्यों कर रहे हो इस मामले में? इस प्रेमा के मामले में, जिसको कि आपने अरुणाचल के रहवासी होने के नाते उस पर भारत का पासपोर्ट था, उसका जो अपमान किया है, उसके लिए अगर कोई खेद चीन की तरफ से व्यक्त नहीं करता तो आपका रक्षा मंत्री होना बेकार, आपका विदेश मंत्री होना बेकार, आपका प्रधानमंत्री होना बेकार। आप SCOC के बैठक में चीन में गए, वहां इन छोटे छोटे मसलों पे बात नहीं कर सकते, लेकिन हिम्मत ही नहीं। जैसा शुक्ला जी ने कहा कि साहस कहां से है, चीन का अच्छा मुंह से नहीं निकलता। तो ऐसे लोग, ऐसे में हमारी संप्रभुता भी खतरे में है और हमारा सम्मान भी खतरे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए इस मामले में सरकार तो गंभीर नहीं होगी, लेकिन बाकी लोगों को गंभीर होकर के सरकार का घेराव करना चाहिए, ऐसा मेरा मन है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपसे ऊपर ना रखना तो वो भी हो जाए। और साथ में जो हम SIR की बात कर रहे थे, SIR की भी हमने बात की। SIR में ये जो निकल कर आता है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ मिली जुली कुछ थी, और आप वो चीजों को उकेर रहे हैं जो अन्य राज्यों में, आपका राज्य तो बच जाएगा और आप वक्त पे नहीं आए। तो बहुत सारे सवाल जो हैं दोनों को मिला के हमने देखा दृश्य, और उसमें एक मैं और भी आगे दृश्य दिखा दूंगा सुनील जी से सवाल पूछने के पहले, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया है सबका। देखिए साहब, SIR के मामले में तो मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि इसकी इस देश को अभी जरूरत नहीं थी। ये स्पेशल और साइलेंट और रॉबरी है। ये SIR चुनाव मतदाता सूचियों के शोधन की प्रक्रिया नहीं है, और इसकी अभी जरूरत नहीं थी क्योंकि आम चुनाव 29 में होना है, और जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां के राज्य चुनाव आयोग अपना काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात संविधान की है। आप जिस पार्टी के बारे में आज जिस पार्टी ने संविधान दिवस मनाया, वो पार्टी भारत का संविधान तो छोड़ो, अपना संविधान नहीं मानती। नहीं मानती 30 जनवरी 2020 को इसी पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है और उसको 2 साल के लिए चुना जाता है। आज हम बैठे हैं 27 नवंबर 2025 में, 6 एक्सटेंशन उसको मिल गए, हटाई नहीं रहे, संविधान की ऐसी तैसी, उस संविधान की भी और इस संविधान की भी। तो इनके लिए तो मैंने लिखा था, अगर आप कहें तो 6 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। मैं इसका जो शुरू का शेर वो ये बनता है कि दीवारों की आंखें भी हैं, कान भी हैं, और छुपा नहीं सकते, ऊपर भगवान भी हैं। ये तो आम धारणा का शेर है। लेकिन दूसरा शेर यह है कि सबसे ऊपर संविधान को मत रखिए, सबसे ऊपर संविधान को मत रखिए, संविधान से ऊपर कृपा निधान भी है। तो जिस देश में संविधान से ऊपर हमारा प्रधानमंत्री है,
जो हमारे राष्ट्रपति को केवल दही मिश्री खिलाने के लिए पद पे बिठाए हुए है, वो बेचारी और कुछ कर ही नहीं सकती महिला। तो ऐसे देश में जहाँ संविधान की इतनी फजीयत हो रही हो, वहां अरुणाचल के रहने वाली प्रेमा की भी फजीयत होगी, सुनील जी की भी होगी, अजय जी की भी होगी, मेरी और आप सबकी होगी, क्योंकि संविधान व्रत प्राय है और उसको बेरहमी से उसकी अवज्ञा हो रही है। और ये सारे नाटक जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्यों उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। पिछले 4 साल से आरोप लग रहा है कि ये संविधान के हत्यारे हैं, ये संविधान की फजीयत कर रहे हैं, संविधान की जितनी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सबको इन्होंने रौंद डाला है। तो ये संप्रभुता के विधान की सबसे बड़े क्या कहना चाहिए वो हैं, गुनाहगार हैं। तो इन पर भरोसा करने की जरूरत है नहीं। जी नहीं, आप आगे और लाइनें हैं, शायद उसमें कुछ और बची हैं, कुछ लाइनें बची हैं उसमें जो आपने लिखा है, कुछ है उसमें आप उसको सुना दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए, 2-3 लाइनें और हैं, मुझे आप सुना रहे पैदा होते हैं, दूसरा शेर है कि पैदा होते नहीं अवतरित होते हैं। बिल्कुल पैदा होते नहीं अवतरित होते हैं। इस धरती पर कुछ ऐसे भगवान भी हैं, इस धरती पर ऐसे कुछ भगवान भी हैं और नामुमकिन है हर हसरत पूरी करना इनके रहते हुए। नामुमकिन है हर हसरत पूरी करना, हसरत तन्हा नहीं कई अरमान भी हैं। ये आजन्म सत्ता पर रहने का अरमान पालने वाले लोग हैं। इनसे संविधान को बचाना हम सबकी ड्यूटी है। जी राइट सर, बिल्कुल। हम तो जो लोगों तक पहुंचा ही सकते हैं कि इतना बड़ा मसला है, क्योंकि गोदी मीडिया तो आपको दिखाने वाला नहीं है जो सच्चाई है, छुटपुट कर लें। सुनील सर, देखिए, हम ये देखते पाते हैं कि जो चीन है उसने अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों में 27 जगहों के नाम बदल दिए, पूर्व का जो जितना सारा कुछ है। और जब G23 जैसा जो हो रहा था, 20 जैसा शिखर सम्मेलन कर रहे थे 2023 में, भारत ने जब हो रहा था, तब वो अपना खेल खेल रहा था, सब कुछ कर रहा था। और फिर आप केवल ये जो चाइना की जो झालरें हैं, इस तरीके से ये जो फर्जीवाड़ा करके ही क्या हो जाएगा, आप 11 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ ऐसे आंकड़े आते हैं। आंकड़े तो गवाह है कि आप क्या कुछ कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, इसके पीछे का खेल क्या है। सब पर आपकी प्रतिक्रिया था। धन्यवाद संजीव जी। दरअसल अगर आपकी विदेश नीति में स्थायित्व नहीं है और अगर आपकी विदेश नीति दलीय हितों से ऊपर नहीं है तो फिर वो अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकती। अगर केवल और केवल राजनीतिक लाभ के हिसाब से भी अगर आप विदेश नीति का संचालन करेंगे, जिस किसी भी देश ने कोशिश की कि उससे वो अपनी आंतरिक राजनीति को ध्यान में रखकर विदेश नीति निर्धारित करता है या उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, तो फिर आप दुनिया के पैमाने पर अपनी प्रतिष्ठा नहीं अर्जित कर सकते। पिछले 1 दशक से क्या हो रहा है, क्या विदेश यात्राओं के दौरान जो गंभीर विषय हैं, द्विपक्षीय हों और चाहे अंतर्राष्ट्रीय मसले हों, उन पर भारत का कोई प्रभावी दबाव कहीं पर दिखाई पड़ा आपको? बड़े बड़े जो मैं विदेशों में जाकर के रैलियां करना, मोदी जी का इमेज बिल्डिंग का काम करना, ये विदेश नीति का काम नहीं है। विदेश यात्राओं में ये नहीं होता। अगर आप विदेश यात्राओं में गए हैं तो आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, उनके पास समय नहीं होता। अगर द्विपक्षीय यात्राओं पे गए हैं, बहुराष्ट्रीय मंच, बहुपक्षीय मंच पे गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में गए, तभी उनके पास समय नहीं होता कि अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए काम करें। चीन के साथ जो घटना हो रहा है, आपने चीन के साथ वीजा, पर्यटन का वीजा देना बंद कर दिया था, क्यों चालू कर दिया? वो कौन से ऐसे हालात हो गए कि आपने चीनी नागरिकों को वीजा देना शुरू किया? सवाल इस बात का है, आपका जो व्यापार घाटा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 5 सालों से, पिछले 10 सालों से आप चीनी सामान के बहिष्कार का किनारेबाजी करते हैं स्वदेशी के नाम पर। बहिष्कार के नारे से चीजें रुकती है क्या? सवाल है कि पूरी की पूरी दुनिया एक उपभोक्ता बाजार बन गई है। अगर किसी उपभोक्ता को सस्ते दरों पर उसके उपयोग की चीज मिल रही है तो आपके नारे से लोग चुप हो जाएंगे। आपने आर्थिक जगत में चीन को चुनौती देने की कोशिश कब की? कब ऐसा दोहराया? आप अपने व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश कब आपने किया?
कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप वो चीन के ऊपर दबाव हो कि वो भारत के ऊपर उसकी आर्थिक निर्भरता बढ़े। तिब्बत के मसले पर आज भी चीन का रवैया क्या है? चीन तिब्बत के मसले पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू साहब ने दिया हुआ बयान वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि एक नागरिक के रूप में मेरा ये बयान है। ये एक मजबूत राष्ट्र का संकेत। हमारे विदेश मंत्री ने यह भी कहा था कि चीन से हम संभव नहीं है उसको हम उससे उस तरीके से आप पार पा सकते हैं। उनका शब्द है कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है वो, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, नहीं किया। ये उनके शब्द हैं। तो आप क्यों नहीं है? सवाल है कि आप क्यों नहीं है? अगर आपके सभी निर्णय राजनीति प्रेरित है, दलीय हितों से प्रेरित है, तो फिर भी एक मजबूत राष्ट्र कैसे हो सकते हैं आप? कौन सा काम आपको करना है? आपको केवल अगर आपकी प्राथमिकताओं में मंदिर के ऊपर ध्वज फहराना है तो फिर चीन का मुकाबला आप कैसे कर लेंगे? वो उस ध्वज फहराने में भी विज्ञान का उपयोग है। अगर विज्ञान का उपयोग नहीं करते आप तो उतना वो झंडा ऊपर तक जाता ही नहीं। बिल्कुल सही है। जिस कपड़े से आप उस झंडे को बनाए उसमें ही विज्ञान है, जिस डोरी में फहराया जा रहा है वो भी विज्ञान है, और विज्ञान की बात नहीं करते। आपका जो प्रवचन है वो पूरी की पूरी तरह से अंधविश्वास पे है। इस वैज्ञानिक सोच को, वैज्ञानिक प्रगति को आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। सवाल कि ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर का ध्वजारोहण ये किसी सरकार का काम है, लेकिन आपके पास समय तो निश्चित है, या तो आप ध्वजारोहण कर लीजिए या चीन जैसे राष्ट्र का मुकाबला कर लीजिए। पिछले 10 वर्षों में आप सोचिए कि चीन अपनी शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, अपने बजट का, अपने जीडीपी का। आप कहां हैं? चीन अपने शिक्षण संस्थाओं के उच्चीकरण के लिए कितना प्रयास कर रहा है, आप कहां हैं? चीन अपने आधारभूत संरचनाओं के विकास करने के लिए क्या क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? मैं संजीव जी अब तक के जीवन में 5 बार चीन गया हूं और 5 बार अलग अलग शहर में गया हूं, किसी शहर में 2 बार नहीं गया। अगर बीजिंग गया हूं तो फिर संघाई चला गया, और वो सभी के सभी शहरों को चीन ने मतलब उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ, क्या नहीं है वहां? हमारे पास सुनील जी, हमारे पास भी कभी अवसर आया था, उसको गंवा दिया। हमारे पास था, कभी हम गंवा दिया, आपने गंवाया। आज आप बताइए ना कि आजाद हिंदुस्तान में चंडीगढ़ के बाद कौन सा नया शहर आपने डेवलप किया? नोएडा और फरीदाबाद के बाद कौन सा आपने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जिसके आप दुनिया के पैमाने पर जिसकी पहचान हो? नया शहर बनाने के नाम पर आपने कौन से प्रयास किए? आज मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में अमरावती को डेवलप करने की बात की जा रही है, और चंद्रबाबू नायडू का अपना प्रयास, उसको आप कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से एक नया शहर विकसित हो जाए। हम कहते हैं कि वाराणसी में ही बड़े प्रयास किए जा रहे थे, एक नई काशी डेवलप हो जाती, वहां एक नया शहर डेवलप हो जाता। आप अगर स्मार्ट सिटी के नाम पे लूट खसोट और सब गड़बड़ी है, उसके अलावा कुछ एक शहर का, अरे आप किसी परियोजना का नाम प्रधानमंत्री जी नहीं लेते। सांसदों द्वारा गांव गोद लिए जाने, कोई नाम सुन रहे हैं क्या आप? नहीं। वो गांव अभी गोद में ही है कि जमीन पर उतरे हैं? बिल्कुल। स्मार्ट सिटी परियोजना का कोई आज तक फिर दोबारा नाम कोई लेता है कि स्मार्ट सिटी में कौन सा काम हुआ? अरबों खरबों रुपए खर्च हो गए और उन शहरों की दुर्दशा हो गई। आधे घंटे पानी बरस जाए, चाहे राजधानी लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, और चाहे हिंदुस्तान का कोई भी शहर जो स्मार्ट सिटी परियोजना में लिया गया था, उसमें स्थिति बेहतर हुई हो, उसमें जल निकासी अच्छी हो गई, साफ सफाई अच्छी हो गई, लोगों का जीवन बेहतर हो गया, अच्छी जलवायु बेहतर हो गई। हम थोड़ा सा सुनील जी ऑफ ट्रैक हो रहे हैं। वो तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम लोग इस पे चिंता कर रहे हैं। और नहीं, बस अंतिम बात, अगर आपकी प्राथमिकताएं ये नहीं होंगी तो आप चीन जैसे देश से मुकाबला नहीं कर सकते। 18 घंटे भारतीय नागरिक को रोका चीन ने, इसके पे क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? आपने बुला करके चीनी राजदूत से बात की कि आपने कैसे मेरे नागरिक को रोक लिया? होते कौन है आप? कोई भी ऐसा निर्णय या ऐसी घोषणा भारत सरकार की ओर से की गई जो लगे कि उस घटना को लेकर के हम संवेदनशील हैं? बड़ा सवाल है ये।
धन्यवाद।